Hello students, today we are going to discuss the attributes of table tag. In the previous video I have told how we can create a table, and we have discussed three attributes of table: border, height and width, and align. Now today we are going to discuss more attributes of height and width. So as you can see, this is a table, okay, and in this table this dark line is known as border, which is around the table. And you can see inside it there are so many cells, and these cells also have borders. So these are cell borders which you can see around all the cells, and this dark black line is known as table border. Okay, so there are two borders, one is table border and second is cell border. So I am going to start. I have already created a table coding. Okay, so we are going to discuss some more, as in previous video I have told border, align, height and width. So today I am going to discuss the fourth attribute of table tag, that is border color. If you want to change the color of a border, I have shown you the dark black line around the table, that is called table border. We can change its color. Suppose I want to change its color in blue. Okay, you do not put any comma. Remember I have told जितने भी मैंने I have used here multiple attributes, but I have just give a single space. This is very important. You should know the syntax. Save it and just open it. See, okay, तो जो आप border देख रहे हो around the cell and around the table, both become in blue color. So in this way we can change the color of a border. Now we are going to learn frames and rules. Frames क्या होते हैं? This is frame. ये जो आप डार्क ब्लू बॉर्डर देख रहे हो, जिसको हम टेबल बॉर्डर कहते हैं, ये फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। और ये जो सेल्स में आप बॉर्डर देख रहे हो, हर सेल में एक बॉर्डर है, तो देयर आर, यू कैन से इनसाइड द टेबल देयर आर 12 बॉर्डर्स, सेल बॉर्डर्स, एंड देयर इज वन टेबल बॉर्डर। तो जब हमें बॉर्डर टेबल का चेंज करना है तो वी यूज द फ्रेम एट्रीब्यूट, एंड व्हेन वी वांट टू मेक चेंजेस इन सेल बॉर्डर वी यूज रूल एट्रीब्यूट. So today we are going to learn the fifth attribute, that is frames. So let's discuss. तो अगर आपको अब जैसे जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर को आप you don't want to display all the four sides, तो we have a option. I am discussing the table border, not the cells border, जिसको मैंने आपको डार्क कलर में शो किया था. तो here you will write frames. बॉर्डर यूज़ करना मैंडेटरी है. जब आप फ्रेम्स यूज़ करते हो तभी टेबल फ्रेम्स अप्लाई होंगे. फ्रेम्स इज इक्वल टू अबव. अब अबव का क्या मतलब है कि जो आपका टेबल का बॉर्डर है वो सिर्फ फ्रेम का ऊपर ही ऊपर आएगा. और रिमेंबर, जब हम फ्रेम्स यूज़ करते हैं तो बॉर्डर का जो मैंने यहाँ पे साइज डिफाइन किया हुआ है 6, वो नहीं अप्लाई होगा. By mistake I have written frames, that's why it has not displayed it. Remember spellings. ठीक है. You can see this line, ये सीरियल नंबर के ऊपर आप देखो एक और लाइन आ रही है. दिस लाइन इज नोन एज फ्रेम. जो अभी बॉर्डर आ रहा था चारों साइड डार्क ब्लू कलर में, वो बॉर्डर था, उसी को हम फ्रेम कहते हैं. तो जो अब मैंने लिखा है फ्रेम इज इक्वल टू अबव, तो आप यू कैन सी जो फ्रेम है, जो बॉर्डर है टेबल का, वो एकदम ऊपर ही ऊपर आ रहा है. यू कैन नॉट सी ऑल दीज फोर साइड्स. इट इज डिस्प्लेइंग ओनली ऑन द above the table. So here are so many values. If you are writing below, so it will apply only below the table. See, okay, so in this way there are so many values. You try all. If you are writing here border, see, border मैंने लिखा है तो चारों border आ गए. The border will apply on all the four sides of the frame. Suppose if I am writing here box,
तो क्या होगा, एक बॉक्स बन के आ जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ कमिंग इन द बॉक्स, जैसे कि बॉर्डर आता है। आप जब बॉर्डर लिखोगे या बॉक्स लिखोगे तो वो बिल्कुल वैसे ही डिस्प्ले होगा जैसे कि बॉर्डर चार मीन्स टू से यू विल नॉट फाइंड एनी चेंज, इट विल डिस्प्ले बॉर्डर ऑल द फोर साइड्स ऑफ द टेबल। उसके बाद आपका आता है एच साइड्स। तो एच साइड्स मीन्स होता है हॉरिजॉन्टल साइड। तो इसमें क्या होगा, ये देखिए, हॉरिजॉन्टल साइड मीन्स टॉप एंड बॉटम। ठीक है, तो इस तरह से ये आप फ्रेम्स को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो। वी साइड्स, तो ये क्या होगा, लेफ्ट और राइट आएगा सिर्फ। प्रेस F5, सी इज डिस्प्लेइंग ओनली ऑन द लेफ्ट एंड राइट। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द टेबल बॉर्डर, नॉट द सेल बॉर्डर। ठीक है, तो इसको आप डिफरेंट स्टाइल में डिस्प्ले कर सकते हो। लेट LHS मीन्स होता है लेफ्ट हैंड साइड। प्रेस F5, ये देखिए ओनली लेफ्ट हैंड साइड इट इज डिस्प्लेइंग। जो टेबल का बॉर्डर है वो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। इसी तरह से अगर आप RHS करोगे तो इट विल डिस्प्ले ओनली राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरह से आप सारी वैल्यूज़ को अप्लाई करके देखोगे। देन इफ़ यू आर राइटिंग वॉइड में क्या होता है, आपका फ्रेम डिसअपियर हो जाएगा, इट विल नॉट अप्लाई एनी बॉर्डर आएगा ही नहीं। जैसे अभी तो कभी वर्टिकल, कभी लेफ्ट, कभी राइट आ रहे हैं, बट व्हेन यू विल डिस्प्ले वॉइड, ये देखिए बॉर्डर चला गया, सिर्फ सेल्स के बॉर्डर बचेगी। तो वॉइड मीन्स होता है इट विल नॉट डिस्प्ले एनी बॉर्डर। तो टुडे यू हैव लर्न हाउ वी कैन डिस्प्ले फ्रेम्स। तो अब फ्रेम्स के बाद हम करते हैं रूल्स। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना रूल्स क्या होते हैं। रूल्स क्या होते हैं, जो सेल के बॉर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो हम फ्रेम को हटा के रूल्स पे करते हैं। रूल्स, अब फ्रेम का मतलब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेम मतलब टेबल का बॉर्डर, जो टेबल के चारों साइड बॉर्डर होते हैं वो फ्रेम्स होते हैं। और जो सेल के बॉर्डर्स हैं उनको हम रूल्स कहते हैं। तो अगर अब मैं रूल्स यूज़ करूँगी कि अब हमें सेल के बॉर्डर्स को किस तरह से करना है, तो अगर मैंने लिख दिया रूल्स इज इक्वल टू नन, तो जो सेल के बॉर्डर्स हैं आई थिंक दे विल डिसअपियर। ये देखिए, ठीक है, बॉर्डर आ रहा है, फ्रेम आ रहा है, क्योंकि फ्रेम तो बाय डिफ़ॉल्ट चारों साइड आता है, इसमें इसलिए नीचे नहीं आ रहा है क्योंकि उसकी हाइट विड्थ हमने कम कर रखी है। अब आप ये देखो सेल के सारे बॉर्डर्स चले गए। तो अगर आपको सेल के बॉर्डर अपने अकॉर्डिंग डिस्प्ले करने हैं तो यू विल गो फॉर रूल ऑप्शन, तो उसके लिए होता है रूल्स। ठीक है, तो ये अब क्लियर हो गया होगा। फ्रेम मतलब टेबल बॉर्डर और रूल्स मतलब सेल बॉर्डर। अब अगर मैंने लिखा ग्रुप्स, प्रेस F5, तो यहाँ पे हमने ग्रुपिंग नहीं कर रखी है इसीलिए वो डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, इसलिए ग्रुप्स का कोई ख़ास यूज़ नहीं है। अब हम रोज़ करेंगे। ये देखिए रोज़ की हैं, तो जो सेल की बॉर्डर डिस्प्ले हो रहे हैं सेल के, तो सेल के जो रोज़ हैं वो डिस्प्ले होंगे क्योंकि मैंने लिखा है रूल्स। अगर मैं यहाँ पे कॉल्स कर दूँ तो जो सेल बॉर्डर के कॉलम्स हैं वो खाली डिस्प्ले होंगे, विद दिस कॉलम्स विल डिस्प्ले। ये देखिए, ठीक है। और अगर मैंने लिख दिया ऑल, तो ऑल में तो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे भी आ रहा था, सारे सेल के बॉर्डर्स आ रहे थे। ऑल लिखने का मतलब है कि जैसे फ्रेम में बॉर्डर और बॉक्स हम लिखते हैं तो सब आता है, तो वैसे ही इसमें ऑल लिखने का मतलब है इट विल डिस्प्ले ऑल द सेल्स। ये देखिए सारे सेल बॉर्डर्स अपीयर हो गए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे